So already we have told our learners that we are going to teach them full grammar without discussing grammar, simply by helping them Yes. learn how to say or write 8 structures in English. This is what we Yes. have told. Yes. So already we have talked a lot about those 8 structures, and our learners, maybe by now they have a very clear idea which those 8 structures are. We have Yes, sir. we have listed we have listed and named those structures for them. For example, Yes, sir. things, then Thanks. possession, then Position. simple, and then continuing, then perfect, then intention, compulsion, and motives. Compulsion. Right, sir. So we have started with these 8 structures, and another point that we have made for them is that learning words is very important. Uh, See, once now they will start working like this with us very soon. These 8 structures they will learn very fast, and they will start writing them and saying them in English. But their big progress in communication depends on how much they are working now on learning new words. Because unless you build a very good vocabulary for yourselves, you again feel difficulties of like they say, hesitation, lack of confidence. All that comes because we do not have enough words with us. Right, So sir. they should work on words. One method we are going to suggest them right now, see, that they should start writing paragraphs in Hindi. Okay. And those paragraphs that they write in Hindi, then they should use those paragraphs for two different kind of two types of work. One is they should try to identify the structures, the Hindi sentences. Like the other day, you talked about a few lines. You picked up a few lines from a book about Yes. traveling in the hills, and so Right. and then we identified sentences for our learners. And Yes. so one thing that now we are going to continuously do is we will show them how to do it, and then we will ask them to continue like that, write a paragraph in Hindi or Punjabi, and then Okay. identify the structures. And Yes. after it, so one is they would be learning very fast how to identify structures, and number two, we will ask them to focus on their words of need, their words of need. Huh? Yes. Say, see, suppose whatever they have written in Hindi, they naturally would need words to say that in English. Okay. And so from their own Hindi sentences, they should start listing their words of need. So they have started building their vocabulary by making this effort. Okay, And sir. another thing that Neha, you would probably be able to do that. We are to ask our learners that they should start listening to small stories that are available online. Okay. Like, they are to open a site. The name of Hmm. that site is Learning English Through Stories. Okay. Learning English Through English Stories. through Huh? stories. Huh? Right. Through stories. Those stories are, 2 minutes long, 3 minutes long, very short Okay. stories, Okay, and sir. they're very well narrated by the speakers. Okay, they narrate the story, and Okay. once the story is narrated, it is a very small story, three Hmm. minutes, 2 or 2 minutes, or even 3 minutes. So, Hmm. when our learners start listening to those stories, number one, they will start see getting the idea of the English pronunciation, how to pronounce Right. English. Okay, how to pronounce English. They would start doing this. Number one, and number two, they will learn words, and Hmm. also they would identify sentences. Okay. Sentences. Right. So two, we have suggested them two things to do. Number one, writing paragraphs till they have perfected their understanding of structures very clearly, and Yes. identifying structures, and Hmm. then from those very paragraphs to learn words of need. This is what they should start doing. Okay. Fine, sir. Fine. And now, just to give them a sample how we are going to proceed, I would ask you that you should read out something. If you have something with you in Hindi, any paragraph, so you can read out, Okay. and then we will just tell them what do we mean when we are suggesting whatever I have suggested up to now. Read Okay, out sir. any paragraph if you have got ठीक any है। paragraph. तो वह बहुत बहादुर है, उसके पास बहुत सारे पुरस्कार हैं। वह आज जल्दी में है। वह हर महीने मंदिर जाता है। वह बच्चों को व्यायाम करना सिखा रहा है। उसने अपना एक अखाड़ा बना लिया है। बच्चों को अभी बहुत मेहनत करनी है।
उसे बच्चों पर समय और मेहनत खर्च करना पड़ता है, पर वह आसानी से अपना समय बच्चों को दे सकता है। ओके, मैंने एक किताब खरीदी। मैंने एक किताब खरीदी। ओके ओके, कैरी ऑन। यस, मैंने एक किताब खरीदी। हाँ, खरीदी। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। आज बहुत ठंड है, इसलिए मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं घर पर ही रहूँगा। मेरा मन कर रहा है मैं टीवी पर कुछ देख लूँ। let us stop here. We have read a quite good number of sentences. Now let us start from the first sentence and tell our learners this is how they identify the structures. Which was your first sentence, Neha? वह बहुत बहादुर है, उसके पास Yes, बहुत सारे पुरस्कार हैं। no, one sentence. First वह sentence बहुत was बहादुर है। वह बहुत बहादुर। Now here is a sentence that is the category of things. Thing. It is thing sentence because we are not discussing any activity. We are describing something. And when you describe something, a thing or a person, it is things sentence. Okay. So where bahut see, it is a thing sentence. This is a thing sentence. And at that and right now, I should start telling my learners that I should start giving them the idea of verb patterns, for example, verb patterns. Okay. So see, in Hindi they know already. So now when they are to write these sentences in English, they will be using verb patterns. Like I've told, okay, what is our system is vernacular bridge course. On the one hand, we have structure, and structures are only 8. There is no 9 structure, and we are to help our learners say these 8 structures with the help of 8 verb patterns. Verb patterns. Okay, okay. So now the things and again you will find out that we will not ask our learners to start saying these sentences for us in English. They themselves. Now this is what I have seen in classes, online classes. My learners for 10 days they only write paragraphs and they start identifying sentences. Okay, and once their identification is complete, at the same time we are also suggesting them the verb patterns. For example, your first sentence क्या था? दोबारा बोलो अपना first sentence. First sentence was वह बहुत बहादुर है। हाँ. So it is a thing sentence because there is no activity. And whenever you have thing sentences, you say them was were in the past, is am are in the present, shall be will be in the future. Okay. Now the second sentence. उसके पास बहुत सारे पुरस्कार हैं। Now this is a possession. It is a second new structure. So obviously, in the past, possession is expressed by using had as a helping verb. Had. In the present, we make use of has have. And in the future, we make use of shall have, will have. Okay. Third sentence. वह आज जल्दी में है। Again, it is a thing sentence. Action तो कोई है नहीं इसमें, वो आज जल्दी में है. So past was were, present is MR, future shall be will. Next. वह हर महीने मंदिर जाता है। Now this is simple. And I told you कि when you simply share things with people, those are simple structure. वो हर महीने मंदिर जाता है. अगर पास्ट होता तो वो हर महीने वो हमेशा मंदिर गया. ये पास्ट में ऐसे होता. और फ्यूचर में क्या होगा? वो हर महीने मंदिर जाएगा. So this is simple act. And the simple structure is the most. See, I always tell my learners that simple structure is slightly difficult to master. Because you know our learners, they whenever there is past, they try to use was were. Whenever there is present, they try to use is MR. But in simple structures, we do not use was were, we do not use is MR. Okay. If it is past, for example, past means past form of the verb. We too. Right. So now again let us give an idea to our learners here about verb. Your action words are called verbs and they have 3 forms: present form, past form and past participle form. Okay. So normally people call them first form, second form, third form. But I will suggest my learners that they from today onwards they should start calling them present form, past participle form.
Okay. This is what they should start saying, Yes. because that will make their work easy. In present simple, we shall be using only present form of the verb. Present. Right, No, sir. no is MR, only Hmm. present form of the verb. And in simple past, we shall make use of past form of verb. No was verb. नो वॉज हाँ फॉर एग्जाम्पल वो मंदिर गया, वो हर महीने मंदिर गया, ही वेंट टू द टेम्पल एवरी मंथ, वेंट, दैट्स ऑल. Yes. Right, वॉज sir. वर्ब हमने यूज नहीं करना. अच्छा, नहीं प्रेजेंट में मैं हर रोज मंदिर जाता हूं, आई जाता हूँ. गो टू द टेम्पल एवरी डे. अच्छा, Every. जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ एस और इस लगाना पड़ता है, Right. ही गोज टू टेम्पल एवरी डे. Yes. Okay, now we will discuss later on as we continue with this kind of work. We shall tell our learners why plurals take only V1 and Yes. singulars take V1 plus S or ES. Yes. Sorry. Why? Right. What is the reason? This is what we will tell our learners. Okay. Yes. So for the time being, they should know that your third sentence, वो हर रोज मंदिर जाता है, it was simple. Simple. And because it is present, we will use V1 or V1 plus S or ES. S Okay. O S. Right, sir. हाँ, past में we make use of V2. Okay, past. और future में shall will plus V1. V1. Yes, sir. Next sentence. Neha, next sentence. वह बच्चों को व्यायाम करना सिखा रहा है. This is continuing. Yes. ये तो बहुत आसान होता है, जहां हाँ. पे रहा वर्ड आ गया तो ये कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी होगी. ओके, तो कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी में पास्ट में क्या होता है, वॉज वर V1 ING. अब मैंने बताया ना आपको, आप कहोगे प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म कहनी छोड़ दो, इसे कहो आप प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल. और Yes. लिखने में ऐसे इसे कैसे लिखोगे, लिखने में प्रेजेंट का मतलब V1, इसे V1 लिखो. अच्छा, पास्ट में V2, पास्ट में क्या लिखोगे, V2. Yes, sir. और पास्ट पार्टिसिपल को क्या लिखोगे, V3. V3. ओके. फॉर एग्जांपल वर्क, टू वर्क, ये V1 है. वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्क की पास्ट V2 क्या है, वर्क. और फिर पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है, वर्क. ओके, तो ये आपका कंटिन्यूइंग जो था, कंटिन्यूइंग हम पास्ट में क्या यूज करते हैं, वॉज वर V1 ING, प्रेजेंट में इज MR V1 ING, फ्यूचर में शैल बी विल बी V1 और I. ओके, चलो योर नेक्स्ट सेंटेंस. उसने अपना एक अखाड़ा बना लिया है. नाउ लुक हियर, दिस इज परफेक्ट, क्योंकि काम खत्म हो चुका है, तो दिस वाज परफेक्ट एक्टिविटी. अब परफेक्ट एक्टिविटी, अगर परफेक्ट एक्टिविटी हो तो वहां पे देखो, मैं अपने लर्नर्स को फिर मैं उनका ध्यान इस ओर दिलवाऊंगा कि कैसे जब नया स्ट्रक्चर आता है तो हमारा वर्ब पैटर्न नया आ जाता है, नया आ जाता है. जैसे थिंग्स था, थिंग्स में क्या था, वॉज वर इज MR शैल बी विल बी. अच्छा, दूसरा पोजेशन था, पोजेशन में क्या था, हैड हैज हैव शैल हैव विल हैव. ओके, और थर्ड अपना था सिंपल. सिंपल में क्या था, V2 पास्ट में, प्रेजेंट में V1 और V1 प्लस S और ES, और फ्यूचर में शैल विल प्लस V1. हाँ, अब ये परफेक्ट चौथा, ये फोर्थ पैटर्न आ गया अपने पास. तो फोर्थ का भी अलग होगा, क्या होगा, पास्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, प्रेजेंट में हैज हैव प्लस V3, और फ्यूचर में शैल हैव विल हैव प्लस V3. हाँ, नेक्स्ट बोलो. बच्चों को अभी बहुत मेहनत करनी है. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. अब ये मैं आपको बता रहा था कि अपने कोर्स की खूबसूरती ये है, ये जो वर्नाकुलर ब्रिज कोर्स है, ये ऐसा सेंटेंस जो आपने अभी बच्चों को अभी काफी मेहनत करनी है, तो ये किसी भी टेंस में कवर नहीं होता, जो किसी टेंस में कवर नहीं करता. लेकिन हमारी स्कीम में ये क्या है, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है. जैसे पहला क्या था, थिंग्स था, दूसरा पोजेशन, तीसरा सिंपल आपने बोल दिया, कॉन्टिन्यूइंग भी बोल दिया, परफेक्ट भी बोल दिया. ये अपना ये 6 पैटर्न है. इसको जब किसी ने कुछ करना हो, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मर्जी है. ऐसे सेंटेंस, इसको हम कहते हैं इंटेंशन सेंटेंस. इंटेंशन. ओके. हाँ, इसका हमने नाम रख लिया इंटेंशन, मर्जी वाले. जैसे मैं फिर एग्जांपल दूं, आपका सेंटेंस था कि बच्चों ने अभी और मेहनत करनी है. ठीक है, हाँ, उन्होंने अभी और किताबें पढ़नी है, उन्होंने कई एग्जाम देने हैं, उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखना है. सो ये जो काम, इनको हम कहते हैं इंटेंशन सेंटेंस. ओके, तो ये इंटेंशन. अच्छा, इंटेंशन, एक मैं यहाँ पे बात बताऊं अपने लर्नर्स को
कि जो इंटेंशन सेंटेंस होते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट में भी, वो या तो पास्ट में होते हैं या प्रेजेंट में होते हैं, फ्यूचर में वो फ्यूचर में नहीं होते। फ्यूचर में ओके। वो, हाँ, फ्यूचर में वो आइडिया सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में कन्वे हो हाँ, जाता है। कन्वे मैं हो आपको जाता है। एग्जांपल देता हूँ। हाँ, अगर पास्ट में इंटेंशन क्या होगा, पास्ट में इंटेंशन होगा कि मैंने सुबह उठना था, बस पकड़नी हाँ, थी, मैंने जाना था, ओके, जान दिस इज पास्ट इंटेंशन। और इसका अच्छा। वर्ब पैटर्न क्या होता है, was to were to प्लस V1। हुँ, ये हमारे लर्नर्स नोट करें, पास्ट का इंटेंशन कैसे लिखते हैं, was to were to प्लस V1। ठीक है, ओके, मैंने सुबह उठना था, आई वॉज टू गेट अप इन द मॉर्निंग, मैंने बस यस। पकड़ी थी, आई वॉज टू कैच अप एस, मैंने लुधियाना जाना था, आई वॉज टू गो टू लुधियाना। ये हुँ, पास्ट में हम इसे ऐसे लिखते हैं, ओके। अच्छा, अच्छा। प्रेजेंट में क्या होगा, मैंने सुबह उठना है, बस पकड़नी है, लुधियाने जाना है। तो प्रेजेंट में क्या होता है, या तो इज टू, एम टू, आर टू और यस, प्लस वी। अब सो अब क्योंकि मैं हूं, आई एम टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई एम टू कैच अ राइट। बस, आई एम टू गो टू लुधियाना। तो ये मेरा पास्ट का भी इंटेंशन हो गया, प्रेजेंट भी हो, लेकिन फ्यूचर में इंटेंशन की जगह ब्लैंक होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये सेंटेंस मैं कैसे कहूंगा, देखना। हुँ, हुँ, पास्ट में क्या मैं कहता हूं कि मैंने सुबह उठना है, बस पकड़नी है, लुधियाने जाना है, इंटेंशन was to were to प्लस V1। अच्छा, प्रेजेंट में मैंने सुबह उठना है, बस पकड़नी है, लुधियाने जाना है, is to M to R2 प्लस V1। हुँ, फ्यूचर में मैं क्या कहूंगा, मैं सुबह उठूंगा, बस हुआ। पकड़ूंगा, मैं लुधियाना हाँ, जाऊंगा। अब ये सिंपल ये फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर हो। यस, तो हमारे लर्नर्स को ये बात पता चलनी चाहिए कि पास्ट में 8 सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट में भी 8 होते हैं, लेकिन फ्यूचर में फिर वो 7 रह जाते हैं, क्योंकि ओके, फ्यूचर में इंटेंशन ब्लैंक, वहां पे इंटेंशन नहीं होता, ओके। ओके सर, नेक्स्ट सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट बोले। उसे बच्चों पर समय और मेहनत खर्च करना पड़ता है। अब पढ़ता है, ये कंपल्शन होगी। हाँ, ये आप कंपल्शन। बिल्कुल इंसिडेंटली आपने जो पैराग्राफ लिखा है ना, बिल्कुल वही कैटेगरी वाइज चल रहा है। पहला आपने थिंग्स बोला था, और उसके बाद फिर क्या आ गया था, पोजेशन आ गया था, फिर शायद आपने फिर एक थिंग्स वाला बोला, और उसके हाँ, बाद सिंपल आ सिंपल, गया, फिर कॉन्टिन्यूइंग आ गया, फिर कंटीन्यूअस। परफेक्ट आ गया, फिर इंटेंशन हो गया। अब ये जो आपने बोला है पढ़ता है, दिस इज कॉल्ड कंपल्शन। हमारे सिस्टम में हम इसे क्या कहेंगे, कंपल्शन। कंपल्शन। ये भी टेंस में कोई नहीं सिखलाता, टेंस में से कोई नहीं सिखलाता, ठीक है नहीं, लेकिन हम राइट, सिखला रहे हैं। कंपल्शन सेंटेंस जो है, पास्ट में क्या होगा कि मुझे सुबह उठना पड़ता था, पड़ता ठंडे था। पानी से नहाना पड़ता था, ठीक है। और वर्ब पैटर्न क्या होता है, हैड टू प्लस V1, यस, हैड टू। राइट, आई हैड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैड टू टेक बाथ विद कोल्ड वाटर, बन गया पास्ट का, ठीक है ना। प्रेजेंट का, मुझे सुबह उठना पड़ता है और मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, हैव टू प्लस V1, ठीक है ना। आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव टू टेक बाथ विद कोल्ड वाटर, ये प्रेजेंट का हो गया। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा, मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मुझे ठंडे पड़ेगा। पानी से नहाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू विल हैव टू प्लस V1। I shall have to wake up in the morning. I will have to wake up in. I shall have to wake up in the morning. I shall have to take bath with cold water. So ये ये कंपल्शन का भी हो गया, कंपल्शन का भी हो गया। नेक्स्ट बोलो। वह आसानी से अपना समय बच्चों को दे सकता है। अब ये मॉडल हो गया, ये मॉडल्स हो गया, मॉडल। हम्म, हाँ देखो, कैटेगरीज का नाम भी हमने, इसको हम कहेंगे मॉडल्स कैटेगरी, मॉडल्स, यस, ये मॉडल्स कैटेगरी है। उसकी कैपेसिटी वो कर, तो यहाँ कैन लगेगा, ठीक है ना। अब जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ हम सभी मॉडल्स के साथ, मैं फिर रिपीट करूं, मॉडल्स कौन कौन सी होती हैं, शैल शुड, विल, वुड, कैन, कुड, कैन, मे माइट और टू, और उसके बाद मस्ट, ये 10 होती हैं। मस्ट, इनके, हाँ, इनके साथ हम V1, हमेशा इनके साथ V1 लगाते हैं। V1। अब यहाँ पे हम कैन के साथ V1 लगाएंगे, दैट्स ऑल। तो नेहा, यहां तक इंसिडेंटली क्योंकि हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए अपने अपने इनको बताऊं लर्नर्स को कि हम क्या करेंगे आज। ये बताना जरूरी था कि कैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिखो और उसकी आप सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दो, यस जैसे ही सर, आप। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू समथिंग सर। यहाँ पे जो आपने ये पूरा स्ट्रक्चर बताया, उसका मैं आपको सबसे जो एडवांटेज है वो बताऊंगी। यहाँ पे हाँ, जो आपका इंटेंशन और कंपल्शन है, हाँ, इंटेंशन जो चीज़ थी ना, हम्म, दैट वर मिसिंग। जो हाँ, हमारे लर्नर्स को, क्या बहुत सारे ट्यूटर्स को भी नहीं पता है कि इस चीज़ को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। जहाँ पे आपने आई एम टू गो, यू आर आई राइट, वॉज टू, यू बिकॉज आर ये चीज राइट, आपने इतनी अच्छी कवर की है और इस तरीके से बिल्कुल समझ आ रही है, बिकॉज ये एक तो स्ट्रक्चर नया है, हाँ, आई एम टू गो, हाँ, राइट, ही वॉज टू गो काइंड ऑफ। तो यस, इसमें इंटेंशन और कंपल्शन में हम हमेशा कंपल्शन यूज करते थे, हम बोलते थे आई हैव टू गो,
बिल्कुल, you are right, Neha. You are perfectly right. I have Yes. seen even teachers are most of the Yes. teachers they are not aware of this difference. But the idea becomes very clear if you tell, Yes. look, मैंने चाय पीनी है, मुझे चाय हाँ, पीनी पड़ती है। ये बड़ी, देखो हिंदी में मैंने चाय पीनी है, हाँ, मुझे चाय पीनी पड़ती है। पीनी तो पड़ेगी। वो क्या करते हैं, दोनों को कह देते हैं आई हैव टू टेक टी, आई I हैव टू have टेक। to. Right, हाउ, sir? अब कैसे, ये तो गलत हो Yes. गया। तो Right, यही sir. हमने बताना है कि जो इंटेंशन होता है लोगों को पता नहीं है, हम बता रहे हैं यहाँ पे कि Exactly. वाज टू इक्वल टू V1 पास के लिए इज टू M2 R2 V1 प्लस, वो होता है प्रेजेंट के लिए। Yes, और sir. जो जब हम हैड टू लगाते हैं, हैज टू हैव टू लगाते हैं, या शैल हैव टू विल हैव टू लगाते हैं, तो वो कंपल्शन होता है। वो आप इंटेंशन अगर उस तरह लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। गलत हो जिससे जाएगा। पूरा, बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल। तो मैं जो सम अप कर रहा था आपके लिए, वो मैं ये कह रहा था कि हमने अब देखो, हम अपने रीडर्स के लिए क्या करेंगे, कल को हम सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ेंगे Yes, और sir. हम उनको उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। Exactly. अब वर्ब पैटर्न्स हमने बता दिए आज। अब हमारे जो लर्नर्स हैं वो अपने आप, उनकी मर्जी होगी कि मैं अब इसे अंग्रेजी में लिखूं या कहूं। ये मैंने लिखूँ। देखा है। Right, मेरी sir. देखो, मैं ऑनलाइन क्लासें लेता हूँ ना जब, तो मैं 15 दिन अपने लर्नर्स को कहता हूँ कि बस हिंदी में पैराग्राफ लिखो और पढ़ो। और वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं और साथ साथ वो वर्ड्स ऑफ नीड लिस्ट करने लग जाते हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ कि 15 दिन के बाद वो अपने आप उनको अंग्रेजी हुँ, में कहने लग जाते हैं, क्योंकि तब तक उनको हमने वर्ड पैटर्न्स बता दिए समझा। यस सर। कि ऐसे हो। और इस तरह से, जिस तरह से आप बता रहे हो ना, क्योंकि हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है, ये तो आज मैं सच, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली सर, ये जो था ना कि बच्चों को बहुत मेहनत करनी है और उसे खर्च करना पड़ता है। हाँ, हाँ, आई एम टेलिंग यू, ये वाला डिफरेंस किसी को नहीं पता होगा, बहुत कम जो जैसे आप हो, जो एक्सपीरियंस्ड है। अदरवाइज हाँ, नहीं, बच्चों को मेहनत करनी है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन हैव टू वर्क हार्ड, मैं, दैट्स इट। नेहा मैंने देखा है, मैं फिर देखो, यू आर परफेक्टली राइट। मैंने ना, अब मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं ना टीचरों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करता हूँ, और उस प्रोग्राम में ना टॉप, हमारे जो टॉप के यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स हैं वो टीचर्स भी होते हैं। और मैं हैरान रह गया कि उनमें से उनको आइडिया नहीं था कि नहीं, ये टेंशन क्या होता है और कंपल्शन क्या होता है। कंपल्शन और क्या? और फिर मैंने, मुझे एक मेरे दोस्त ने, एक पब्लिशर है, उसने मुझे एक किताब दिखाई। उस हम्म, किताब में वो कहता है ये स्पोकन इंग्लिश पे किताब है। अब मेरा तो टेस्ट, ये तो पता है मेरा तो टेस्ट ही एक है। मैंने राइट, मैंने उसके ये दोनों सेंटेंस उठाए। एक जगह उसने लिखा हुआ था मैंने चाय पीनी है, दूसरी जगह उसने लिखा हुआ था मुझे चाय पीनी पड़ती है। बढ़िया और है, उस आदमी ने उस किताब में दोनों सेंटेंस को आई हैव टू टेक लिखा हुआ था। यस, तो किताबों में भी लोग इस तरह लिखते हैं। यस ये, सर। लेकिन हमने ये बात अपने लर्नर्स को क्लियर कर दिया। ओके, सर ठीक लर्नर को नहीं, मुझे भी क्लियर हुई है आज, बिकॉज है। सच्ची मेरे को नहीं थी क्लियर, ये चीज़ मुझे आज क्लियर हुआ है। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत Yes, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। Neha, this honesty is going to make you a very wonderful teacher. मैं, मुझे भी सारी चीजें हमेशा पता नहीं थी होती, मुझे भी नहीं पता होती थी। लेकिन राइट, जब मुझे कोई बता देता था, आई वुड नेवर प्रिटेंड कि मुझे आती थी यस, ये बात, मुझे नहीं आती राइट, थी, लेकिन हाँ, मुझे अब आ गई, दैट्स ऑल। और ये जो एटीट्यूड है कि आप ईमानदारी से जो आपको नहीं आता उसे मान लो और सीख लो, तो जिंदगी में आप बहुत प्रोग्रेस करते हो। मैंने इस जिंदगी में बहुत सीखा है लोगों से, और यस, मैंने जो मुझे नहीं आता उससे मैंने एकदम माना है कि मुझे नहीं आता। राइट, एंड दिस इज द राइट अप्रोच। दिस इज गोइंग टू मेक यू अ वेरी ऑनेस्ट एंड रिच टीचर। मतलब दिस इज द आइडिया। ओके नेहा, अब हम क्या करते हैं, आज हमने रफली, अब आज हमने क्या किया, आज हमने अपने लर्नर्स को पूरा वर्ब पैटर्न्स का आइडिया दे दिया, ठीक है आइडिया ना। दे दिया, यस तो सर, हाँ, अगर मैं क्विकली मैं उनके लिए सम अप कर दूं, थिंग्स में क्या होता है, वॉज वर इज एम आर शैल बी विल बी। ओके, राइट सर, अच्छा। पोजेशन में क्या होता है, हैड हैज हैव और शैल हैव विल हैव। ओके, हाँ। सिंपल में क्या होता है, V2 V1 या V1 सॉरी एस शैल विल प्लस V1, ठीक है, यस नंबर सर, 3। अच्छा, उसके बाद कॉन्टिन्यूइंग के लिए क्या होता है, वॉज वर V1 ING, इज एम आर V1 ING, शैल बी विल बी V1 ING। ओके, यस सर, अच्छा। उसके बाद परफेक्ट के लिए क्या होता है, हैड प्लस V3, हैज हैव प्लस V3, शैल हैव विल हैव प्लस V3। और उसके बाद इंटेंशन के लिए पास्ट में was टू were टू प्लस V1, यस, प्रेजेंट में is टू M2 R2 प्लस V1, और फ्यूचर में ब्लैंक, क्योंकि फ्यूचर में ये सिंपल फ्यूचर बन जाएगा। सिंपल ओके, फ्यूचर बने, बन यस सर, जाएगा।
अच्छा, परफेक्ट में पास्ट में क्या था, हैड टू प्लस V1, प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू प्लस V1, और फ्यूचर में शैल हैव टू, विल हैव टू प्लस V1। ठीक है, और मॉडल्स में हम सभी मॉडल्स के साथ प्लस V1 लगाते हैं। ये हमारे वर्ब पैटर्न्स हमने अपने रीडर्स को आज बता दिए हैं। अपने सेंटेंस इससे ज्यादा बोल रहे थे थोड़े से, उसको दोबारा बोलते ताकि आइडेंटिफिकेशन कर दें। आइडेंटिफिकेशन। ओके सर। मैंने एक किताब खरीदी। अब देखो ये क्या है, ये सिंपल है पास्ट का। हाँ जी, ये सिंपल है पास्ट का। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। मैंने एक किताब, वह क्रिकेट खेलेगा। दिस इज सिंपल फ्यूचर। हाँ हाँ। यस। और था आज बहुत ठंड है। आज बहुत ठंड है। अब देखो, अब आज बहुत ठंड, पहले ये देखो आज बहुत ठंड है। अब देखना यहाँ पे ना एक बड़ी कमाल की बात हम अपने लर्नर्स को बताते हैं। हाँ, लर्नर्स को हम ये बात बताएं कि ना ये दो वर्ड जो होते हैं, इट और देयर, इट और देयर दो वर्ड्स होते हैं। ये एक तो इनका मतलब है इट मैंने ये, और देयर मैंने वहां। एक तो ये मतलब है ना, और मैं कहूंगा इट इज